Dear student, once again welcome back to our channel JMS by RGL sir. In this session we are going to discuss the speed solutions of the JEE Advanced 2020. हम लोग आज मैथ्स पेपर 1 का सेक्शन 1 डिस्कस करने वाले हैं. देखा जाए तो सेक्शन 1 के अंदर डियर स्टूडेंट 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनके अंदर हर क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन था. यहाँ पे करेक्ट आंसर करने पे +3 मार्क्स थे और गलत करने पे -1 की मार्किंग आपको मिल रही थी डियर स्टूडेंट. तो लेट अस चेक आउट द क्वेश्चंस वन बाय वन. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया था. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं ये है a एंड b और सेकंड इक्वेशन के रूट है c एंड d. फ्रॉम द इक्वेशन वी कैन राइट द सम ऑफ रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट. a plus b is -20 and a into b is a minus of 20, right? And from the second equation we can write the sum of the root c plus d is 20 and c into d is 20, right? These are the terms we can get here. Now we have to identify the value of this vague expression. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? यदि मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को एनालाइज करूं तो देखो यहाँ पर मेरे पास कोई भी फैक्टर्स डायरेक्ट नहीं बन रहे थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दिया. तो a स्क्वायर c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d माइनस ए डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c माइनस बी सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d माइनस बी डी स्क्वायर. These are the terms you will get here. These are the 8 terms. तो यदि हम इसको एनालाइज करें कि a स्क्वायर c को a स्क्वायर d के साथ क्लब कर लें तो you will be getting c plus d. c plus d is 20. So this will turn out to be 20 times a square. यदि मैं minus of ac square को minus of bc square से क्लब करूं तो what I am going to get minus of a plus b, that is minus 20. So this will give you 20 times c square. Similarly, if I talk about minus ad square and minus bd square, I am going to get 20 times ad square, and symmetrically the remaining two terms will give you 20 times b square. So what you have got here, you have got here 20 times a square plus b square plus c square plus d square, right here student? Now we don't know the value of a square plus b square, but we know the value of a plus b into a minus b. So we can write the a square plus b square as a plus b ka whole square minus twice of ab. Similarly, c square plus d square can be written as c plus d ka whole square minus twice of cd. Since we know that a plus b, a into b and c into d are the reverse of each other, right? A into b and the c into d are the reverse of each other, negatives of each other, sorry. So these terms will cancel out, and a plus b and a minus b are the negatives of each other. इनके squares होंगे वो 400 होंगे, तो 400 plus 400 800. 800 into 20, that is the 16,000. तो ये आपका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट. हम चेक करें यहाँ पर तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर. आई होप this solution helps you. डियर स्टूडेंट, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बोला गया था फंक्शन mod x into x minus sin x. ये 1 है, on to है, into ये हमें चेक करना था. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. यहाँ पर आप देखिए कि जो फंक्शन है fx, यदि मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं कि दिस विल बी x into x minus sin x when x is greater than or equal to 0. And it would be, mod will open by a negative sign, minus x into x minus sin x when x is less than 0, right? From here I can conclude the f dash x, right? So f dash x will be what? This is, you can say, x square. The differentiation of x square is 2x minus x sin x. X sin x का जो differentiation होगा, that will be minus sin x minus x cos x, right? This term you will get when x is greater than 0, and symmetrically you will get minus का 2x plus x sin x. So plus x sin x you will get sin x plus x cos x when x is negative. ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, डिफरेंशिएशन आपने कर लिया. अब आप देखिए थोड़ा सा इस डिफरेंशिएशन को यदि मैं एनालाइज करूं f dash x को, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर? सो यू आर गोइंग टू गेट हियर हिट x minus sin x. मैंने इसको अरेंज किया एंड प्लस आई हैव रिटन एज x into 1 minus cos x. ये जो 2x था इसको मैंने x में स्प्लिट कर दिया है, एक x को मैं इसके साथ क्लब कर लिया और x कॉमन लेकर के 1 minus cos x को लिख दिया है मैंने. तो यहाँ पर x greater than 0 के लिए कहानी आ रही है. और यदि मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में डियर स्टूडेंट व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर x into cos x minus 1, right? So and minus of x minus sin x when x is negative. ठीक है, so let us observe when x is positive, we know that x is greater than sin x, so this is positive. 1 is greater than cos x and x is positive, so this quantity f dash is positive, right? F dash is positive when x is positive. Let's talk about when x is negative. This is negative, x is negative, this is positive. This is x is greater than sin x but in negative terms, so this is negative, 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 positive. So f dash is always positive whenever x is belongs to r. Means x जो है वो ऑलवेज, x की हर रियल वैल्यू के लिए मेरा जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है. तो यदि मैं टेंटेटिवली यदि fx के ग्राफ की प्रोटेशन की बात करूं कि fx का जो वैल्यू था 0 के ऊपर 0 था डियर स्टूडेंट,
इन्फिनिटी के ऊपर लीडिंग टर्म के डिफाइन करेगी, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर एक्स स्क्वायर का जो टर्म होगा वो डिटरमाइन करने वाला है। तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी के ऊपर कैसा आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, ग्राफ इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से हमारे पास क्लियर है कि फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा, और रेंज भी इसकी आर आने वाली है, और रेंज यदि आर आ गई है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 एंड ऑन टू, सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप दिस सॉल्यूशन हेल्प्स यू। Dear student, let's discuss with the question number 3. In question number 3, these two functions are given with us, fx and gx. So I can rewrite the function fx as, see that when x is greater than equal to 1, this modulus will open by a positive sign. So you are going to get it as e to the power x minus 1 minus e to the power 1 minus x. And when x is negative, these two functions will remain identical. So difference will become 0. And gx is this simple thing, right? And now we have to identify the area included between the fx and gx and the x equal to 0. यदि मैं इनके ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करूं डियर स्टूडेंट, so how the graph will look like? See, from x equal to till x equal to 1, fx is 0. तो यहाँ पर जो fx है वो 0 है आपका, and gx is always a positive function. यदि मैं gx की 0 के ऊपर बात करूं तो this is always a positive function, और 1 तक gx जो होगा डियर स्टूडेंट, that is going to decrease, and आगे this is going to increase, because at x equal to डिफरेंशिएशन चेक करेंगे तो gx का जो फंक्शन होगा टेंटेटिवली ऐसा आएगा, और fx यहाँ पर आगे आपका इंक्रीज कर रहा होगा। तो क्या ये फंक्शन आगे जाकर के एक दूसरे को कट करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ की प्लॉटेशन आवश्यकता होगी। सो लेट अस सॉल्व द fx इक्वल टू gx, कि क्या फंक्शन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो fx इक्वल टू gx को हम सोल्व करते हैं, तो e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 times e to the power x minus 1 plus e to the power 1 minus x। ठीक है, यदि हम स्टूडेंट्स इसको सोल्व करें तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, तो 1 by 2 e to the power x minus 1 is equal to 3 by 2 times e to the power 1 minus x. So from here you will get that, let's say x equal to alpha satisfy this solution, so I can conclude that e to the power alpha minus 1 will be root 3, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा इधर जाकर के, तो e to मतलब at that point when दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, और जब ग्राफ आपके कट कर रहे हैं दैट मींस यदि आपका fx का ग्राफ इस तरीके का है तो gx का ग्राफ कुछ इस तरीके का जा रहा होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ gx एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ fx। तो दोनों के दोनों फंक्शन एक पॉइंट x इक्वल टू अल्फा पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस पॉइंट इज x इक्वल टू अल्फा। ठीक है, x इक्वल टू अल्फा। तो इस पॉइंट की चाहे तो अपन अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इजीली वी कैन कंप्यूट 1 प्लस हाफ ln3। आप चाहे तो इस पावर ब्रैकेट में छोड़ दें ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे हमारी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया, राइट? सो in this question what we can do here, you can observe that the area, so area is y up minus y down basically. So till x equal to 1, from 0 to 1, we need to discuss the area in the first quadrant only. So if in the first quadrant in 0 to 1, the y up is f, y up is gx, right? And the y down is 0. And from 1 to alpha, the y up is gx and y down is, so I can say that area is 0 to 1 gx minus 0 into dx plus 1 to alpha, what you will get, gx minus fx into dx. I hope this helps you in identifying the area of the curvature, right? So let's go ahead with this. So what I can say here, the area was 0 to 1 gx dx. तो आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि gx जो था वो था e की पावर x minus 1 1 by 2 times e to the power x minus 1 plus e to the power 1 minus x into dx. And from 1 to alpha, what you will get, 1 to alpha function was gx minus fx. तो यदि मैं gx minus fx को यदि मैं सोल्व करता हूं तो what I am going to get, gx minus fx. तो gx minus fx was minus of half e to the power x minus 1 and plus 3 by 2 times e to the power 1 minus x into dx. So let us simplify this. Let us integrate this first of all. 1 by 2 e to the power x minus 1 minus e to the power 1 minus x. This will be your integration, right? From 0 to 1. And now let us the integration of this. We can take the minus half common here. And in the integration, what you will get, e to the power x minus 1. और हमें पता है यहाँ पर इंटीग्रेशन में एक नेगेटिव आएगा, वो बाहर हम निकाल चुके हैं। तो what you will get, 3 by 2 e to the power 1 minus x from 1 to alpha. Am I right?
ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट 1, सो व्हाट यू विल गेट 1/2, 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1, एंड 1 माइनस 1 माइनस, जब 0 पुट करेंगे आप तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट e टू द पावर 1/e माइनस e, राइट, माइनस 1/2 e टू द पावर अल्फा माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 1/2 आप बाहर निकाल चुके थे तो 3e रहेगा, 3 टाइम्स e टू द पावर 1 माइनस अल्फा माइनस, जब आप 1 पुट करने वाले हैं तो e टू द पावर 0 प्लस 3 टाइम्स e टू द पावर 0, राइट। तो ये एक्सप्रेशन आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें नेगेटिव कॉमन ले लें, 1/2 टाइम्स e माइनस 1/e, एंड हियर यू विल गेट माइनस हाफ। आपको पता है कि वो जो पॉइंट था वहां पर e टू द पावर अल्फा माइनस 1 की वैल्यू √3 थी, तो ये √3 और ये 1/√3, तो √3 प्लस √3 प्लस 3/√3, राइट, तो 2√3 बन जाएगा ये, एंड दिस इज -4, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर 1/2 e माइनस 1/e, and this is minus half, and this is the 2√3, so 2√3 and 1/2, that is √3, and minus minus plus, right, तो minus का √3 and plus का 2, so 2 minus √3 and plus this term, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए 2 minus √3 plus 1/2 टाइम e minus 1/e, this is the option A, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आप एरिया इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो एरिया का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना डियर स्टूडेंट। Dear student, in the question number 4, this was the problem on the common tangent of the ellipse and hyperbola. यहाँ पर क्या गिवन है कि एक एलिप्स है आपके पास और एक पैराबोला है, सॉरी, ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन टेंजेंट है, सॉरी कॉमन टेंजेंट नहीं है बेसिकली, कि एलिप्स के ऊपर टेंजेंट और पैराबोला के ऊपर टेंजेंट जो है इस पॉइंट के ऊपर, वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर ही टेंजेंट्स है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। आपको बोला गया है कि पैराबोला का एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम, तो पैराबोला का जो एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम होगा यहाँ पर वो क्या होगा, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वी कैन टेक एज a, 2a, दैट इज लैम्डा, 2 लैम्डा। सो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ गए हैं लैम्डा, 2 लैम्डा, ठीक है। अब मुझे दोनों कर्वेचर पे टेंजेंट की बात करनी है। यदि मैं टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यदि मैं स्लोप बात करूं तो आप याद कीजिए y² = 4ax के किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट की बात करते हैं तो वो होता है y = tx + at², तो t को यदि मैं कंपेयर करूं 280 से तो t is 1, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द पैराबोला इज नथिंग बट 1। यदि मैं बात करूं x² / a² + y² / b² = 1, जो कि मेरा क्या है, एलिप्स है। यदि मैं इसके टेंजेंट की बात करूं तो फटाफट से आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, यदि आपको नहीं भी आता है पॉइंट पता है तो 2y/b² * dy/dx = -1, so from here you can get the slope of the tangent on the ellipse at a point P, right? The slope of the tangent at a point P, that will be minus of x/y into b²/a². So let us calculate the slope of the tangent of the ellipse at a point P. So this will be, let us substitute lambda or 2 lambda, so what you are going to get here, minus b²/2 of a². Since it is given that this tangents m1 into m2 = -1, because these two tangents are mutually perpendicular to each other, so 1 into minus b² upon minus 2a² = -1. So from here you have got a one relation that value of a² by b² = 1/2, ठीक है, क्लियर है बात। अब आप देखिए कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स पूछी गई है हमें, तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यदि a² का वैल्यू b² / 2 है तो मतलब b a से बड़ा है। यदि b a से बड़ा होता है तो इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में 1 - a² / b² आता है डियर स्टूडेंट, तो यू विल गेट 1/2। तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू e² का वैल्यू 1/2 है, तो ये मत टिक कर देना आप बी ऑप्शन, आपके पास इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1/√2 आएगा डियर स्टूडेंट। तो इसेंट्रिसिटी जो होगी एलिप्स की, दैट विल बी 1/√2, क्लियर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। यहाँ पर क्या बोला गया है कि वी हैव द 2 कॉइन्स, राइट। फर्स्ट कॉइन को हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज द 2/3, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कॉइन में क्या हो जाएगी, 1/3। देखो 2/3 is the probability of success and the 1/3 is the probability of failure, because the head आने को सक्सेस माना गया है यहाँ पर। ये तो ही फर्स्ट कॉइन के बारे में। यदि मैं सेकंड कॉइन की बात करूं तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 1/3 और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है 2/3, राइट। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल होने चाहिए। किसी भी क्वांटिटी के रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, दैट मींस α² = 4 बीटा। अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड that appeared when the first coin was tossed the 2 times, and the beta is the number of heads when the second coin was tossed the 2 times. So what I can say, the only possibility is alpha is 2 and beta = 1.
or sorry, not the only possibility, there is a second possibility that alpha and beta both are the 0. So we can say that the required probability is first coin turned into the two heads. First coin, two head, second coin, one head, or first coin and second coin both 0 head. These are the two possibility. तो फर्स्ट कॉइन दो हेड, तो दो ट्रायल में से दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो दिस विल बी 2/3 का स्क्वायर. तो ये दोनों टास्क साथ साथ होने चाहिए, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, मल्टीप्लिकेशन, और दिस इज द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे सेकंड कॉइन वन हेड, तो दो ट्रायल में से एक हेड आए, तो सेकंड कॉइन की हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ये कहानी थी सेकंड कॉइन की, ये था सेकंड कॉइन के बारे में बातचीत. ठीक है, तो 1/3 इंटू 2/3, राइट. अब दोनों में ही 0 हेड आए, तो 0 हेड, तो दिस इज 1/3 का स्क्वायर इंटू दोनों में ही, मतलब इसमें भी 0 हेड आए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी और टेल आने की 2/3 थी, राइट. तो ये आपके आंसर आ गए. यहां से देखिए 4 और 2 8, 8 और 2 16, 16/81, एंड दिस इज 2 square 4 and 2c0 2c0 1, 4 divided by 81, so your answer is 20 divided by 81. So this is your correct answer for the required probability such that the roots of the quadratic polynomial are real and equal, तो जो कि ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास आंसर सेट हो रहा है. ठीक है, so let us proceed with the question number 6, which is the last question of this particular section. Single correct type ka, this is again from the house of the, sorry, this is from the house of application of derivative. You can see that x varies from 0 to pi/2 and y varies from, y is on the curve like 0 to 2 times sin 2x. If I plot the graph of y equal to 2 sin 2x from 0 to pi/2, so you can observe that here we have 0, here we have a point pi/4 and here we have the pi/2. ठीक है, so this is the graph. तो pi/4 पे जो फंक्शन होगा ये 2 अटेंड करेगा. अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर एक रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल एक जिसका एक साइड जो है वो x एक्सिस के ऊपर है. तो लेट्स से ये जो पॉइंट है ये x0 पॉइंट है डियर स्टूडेंट. तो यहाँ पर देखिए आप रेक्टेंगल की कंडीशन, भाई x0 पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 sin x0, राइट. अब कुछ बार कहते हैं कि सर, बच्चे बोलते हैं सर इस वाले जो पॉइंट है भाई ड्यू टू सिमेट्री, मैं तो ये डायरेक्टली कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी pi/2 minus x0, देन ओनली दिस कर्वेचर विल बिकम द रेक्टेंगल. यदि आपको फील नहीं आती है तो आप इसको y0 मान लीजिए. अब इस पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट आएगा और इस पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट आएगा उनको इक्वल कर दीजिए. 2 times sin of y0, 2i of y0. यहां से आप कंपेयर करेंगे तो x0 प्लस y0 की वैल्यू pi/2 आ गई. मतलब आपको ये पॉइंट जो था, जो मैंने डायरेक्टली एज्यूम किया था pi/2 minus x0, आपको रेक्टेंगल की कंडीशन लगा करके प्रूव भी कर सकते हैं. ठीक है, अब डियर स्टूडेंट दिस इज द लेंथ, राइट, एंड दिस इज द हाइट. So what is given? We have to maximize the perimeter. So perimeter is what? Twice of this length. So this length is what? Pi/2 minus x0 minus x0. This is the length, and the height is at any x0. This point is x0 comma 2 times sine of 2x0, right? So y distance is vertical is the 2 sine x0, and we have to do it twice. So twice of 2 times of sine of 2 sine x0, right? So what I'm going to get, perimeter is nothing but pi minus 4 times x0 plus 4 times sine of 2x0. Now we have to maximize the perimeter. So dp by dx naught, let us maximize this, minus 4 plus 8 cos of 2x0. तो यदि हम इसको सोल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, so what you are going to get, cos of 2x0 equal to half. That means you can find out that it is a maximum point या minima point, तो डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप. So you will get minus 16 times sine of 2x0. तो यदि मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूं कि x0 equal to pi/6, right, 2x0 equal to pi/3, तो x0 equal to pi/6. At x0 equal to pi/6, this is negative, so this is the maxima का point. ठीक है, दूसरा वाला point रिजेक्ट हो जाएगा. So at x0 equal to pi/6, we have the perimeter is a maximum. Perimeter is a maximum, right? So at a maximum perimeter, you have to calculate the area, right? So let us calculate the area of the rectangle. तो ये जो area होगा इस rectangle का, तो इसका जो area होगा rectangle का, that will be the length. Length is the pi/2 minus 2x0 into the height. Height is the twice of sine of 2x0. Let us substitute x0 equal to pi/6. When you will put x equal to pi/6, you are going to get, this is pi/2 minus pi/3, that is again pi/6 into 2, and the sine of pi/3 is the √3/2. So this is your required area. So you can see student here, √3 को √3 से cancel करते हैं, तो
पाई अपॉन 2√3, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, पाई अपॉन 2√3, दैट इज द ऑप्शन सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन 1 फ्रॉम द जेईई एडवांस 2022। आई होप आपको बच्चों स्पीड सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। यदि आपको और सॉल्यूशन चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर आईआईटी जेईई लेक्चर 2021 बैच। उसके लिए आप हमें जल्दी से कांटेक्ट कीजिए। गुड डे।